Hello, good morning, dear student. My name is Kinjal Patel, and I am your English teacher. Today we are going to look about class 9th and 10th English medium writing section. In that writing section, up to now we have seen many topics, and we are today going to add one more topic, that is notice writing. हम उसके अंदर notice writing add करने जा रहे हैं. Why we need to write a notice? हम notice क्यों लिखते हैं? To notify someone about something special or a kind of subject that is very relevant to that public, right? For example, a group of people होता है या particular होते हैं, तो उसके related जो important नोटिस किसी को कुछ नोटिफाई करना हो, then and then we are only writing a notice. नोटिस राइटिंग को अच्छे से लिखने के लिए नोटिस राइटिंग को अच्छे से लिखने के लिए you must understand the format of a notice writing. आपको format of a notice writing समझनी पड़ेगी. Let's talk about the format of a notice writing. क्या होती है? सबसे पहले the very first topic or the first you can write about the name of issuing agency or authority. When you are just trying to write the notice and read the question in your exam paper, at the time you have to understand that who is writing that notice, कौन वो publish कर रहा है notice को, वो आपको यहाँ पे लिखना है. Then you should put the title notice NOTIC in a block letter at the center of the notice. Notice के बिल्कुल center के अंदर आपको वो लिखनी है. Now after centralize this word, you should write the date of issue. When the notice is being issued, कब वो issue हो रही है, तो यहाँ पे ये डेट आपको इस साइड ऑफ द नोटिस लिखना है. After using date of issue, you should write the title or the subject of an event. What is the subject of that notice that you are writing? तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में ये चीज आ जाएगी. तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट और टाइटल वहां पे आपको मेंशन करना पड़ेगा, वो भी सेंटर में होना चाहिए, उसको भी ब्लॉक लेटर या फिर उसको आप अलग से हाईलाइट करके लिख सकते हो. देन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अ नोटिस राइटिंग फॉर्मेट इज टू राइट अबाउट बॉडी. बॉडी उसकी जो लिखनी है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है. पूरी की पूरी नोटिस का आधार आपका होगा बॉडी ऑफ अ नोटिस. इट विल गिव यू 2 marks, राइट? तो उसके अंदर आपको क्या क्या मेंशन करना है? डेट, टाइम, ड्यूरेशन, प्लेस एंड वैल्यू. जो भी चीजें हैं ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख रखी है कि भाई कौन सी डेट को ये नोटिस टेक प्लेस होने वाली है, टाइम क्या होगा, टाइम का ड्यूरेशन क्या होगा, कौन सी प्लेस और वैल्यू होगा. ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी हो. एट द एंड ऑफ द नोटिस यू हैव टू जस्ट पुट द ऑथोराइज्ड सिग्नेचर. इसमें क्या आएगा? जो भी अथॉरिटी होगा उसका नाम लिखना है, उसका डेजिग्नेशन लिखना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ our school is issuing a notice for the students and parents, at that time the name of the school यहाँ पे आएगा, और फिर जो इश्यू कर रहा है वो बंदा, फॉर एग्जाम्पल हमारे प्रिंसिपल सर अगर वो रिलीज कर रहे हैं तो यहाँ पे उनका नाम और उनका डेजिग्नेशन क्या है, तो कि प्रिंसिपल, तो वो लिखना है. एंड द सिग्नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन शुड बी मेंशन. ये सारी चीजें व्हेन यू आर जस्ट राइटिंग इन अ फॉर्म ऑफ नोटिस, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू पुट अ पेंसिल बॉक्स and then mention every detail what you are asked in your question of a notice writing. My dear student, I am just going to give you few seconds to just read and understand the format. Be quick. I hope my dear student you have just read the format now. सर ये तो समझ में आ गया. इफ यू हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड दैट सर यहाँ पे ये सारी चीजें तो बहुत इजी है दैट वी कैन राइट, बट व्हाट इज अबाउट बॉडी, जो कि हमारा मेन पार्ट है ऑफ अ नोटिस. तो डियर स्टूडेंट यू हैव टू कीप फ्यू थिंग्स इन योर माइंड. दैट नंबर 1, do not cross the word limit of 50 words. Notices are always been limited within 50 words only. सिर्फ 50 शब्दों की ही वो आपकी बॉडी होनी चाहिए. नंबर 2, repetition of any information should not be there.
if you given one information, for example you have given an information about the venue where the notice is being taken place, कहाँ पे taken place होने वाली है उसका अगर आपने place बता दिया है, venue बता दिया है, then that word should not be repeated again and again into that notice. ठीक है, ये चीज याद रखना. Always enclose the notice in a pencil box. मैंने as I have told you earlier while explaining the format that the pencil box, यहाँ पे मैंने आपको ये पर्पल कलर का पेंसिल लेके मतलब चौक लेके आपको वहां पे दर्शाने की कोशिश की है. आप ये ध्यान रखिएगा, आप पेंसिल से ही, प्लीज डू नॉट यूज ब्लैक पेन और अ ब्लू पेन और एनी अदर पेन शुड नॉट बी यूज. ओनली पेंसिल शुड बी यूज. व्हाई? यू आर जस्ट यस मेंशनिंग द बॉर्डर ऑफ दैट. नाउ कीप योर नोटिस टू द पॉइंट. जो भी हमें क्वेश्चन के अंदर पॉइंट्स दिए गए हैं that only should be omitted in the form of body of a notice. Extra words आपको नहीं वहां पे ऐड करने हैं. As a human being we are just trying to add certain extra words of our own. That should not be added. वो वहां पे added नहीं होना चाहिए. Highlight the words notice and the title when you are just writing this notice, as I have put over here. Notice and the title, these two things should be highlighted. मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है. डेट को आपको हाईलाइट नहीं करना है, ये दोनों आपको हाईलाइट करना है जब आप राइटिंग नोटिस कर रहे हो. ठीक है ना. यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखनी है कि डू नॉट ऐड पर्सनल इंफॉर्मेशन. यहाँ पे आपके घर का कुछ भी नहीं डालना है. डियर स्टूडेंट, रिमेंबर वन थिंग, यू जस्ट शुड राइट ओनली व्हाट आर बीन आस्क्ड इन अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चन. क्वेश्चन के अंदर जो भी मांगा गया है आपसे उतना ही ओमिट करिए. बाकी सभी के घरों में सब कुछ होता है माय डियर, राइट? तो वो सभी चीजें नहीं डालनी है. आगे, योर नोटिस शुड हैव आंसर्स टू. सर इसमें नोटिस, ये सारी चीजें तो आपने जो बोली ना वो हमें अभी समझ में आ गई, लेकिन नोटिस को 1 2 3 4 इस तरह से लाइन में कैसे लिखते हैं? तो आपको उतना ही याद रखना है. क्या याद रखना है कि जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा ना उसको क्वेश्चन करो कि भाई क्या है. नंबर 1, वाई, क्यों है, वो सब्जेक्ट क्यों है भाई. फिर कब है वो भी पूछो. वेयर, राइट, कहाँ है. एंड हु, कौन कर रहा है और उसकी इफेक्ट किसको हो रही है. ये अगर क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाता है बाय रीडिंग द क्वेश्चन, राइट, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक. आप अपने राइट ट्रैक में हो. अगर इतने क्वेश्चन के आंसर आप देते जाते हो देन यू विल हैव योर नोटिस प्रॉपर. I have put one example on the board. Just you have to focus on it, my dear students. See, आप क्या करोगे? Water supply will be suspended for 8 hours. That is 10 AM to 6. यहाँ पे वाटर सप्लाई जो है वो सस्पेंड किया जाएगा. कब किया जाएगा? 8 आवर्स तक के लिए किया जाएगा. तो दिस विल बी माय सब्जेक्ट. ये हमारा सब्जेक्ट होगा. सप्लाई वाटर जो है वो सस्पेंड किया गया है या किया जाएगा, वो हमारा होगा यस सब्जेक्ट. What is the time duration for that subject? सब्जेक्ट का टाइम ड्यूरेशन होगा 8 आवर्स 10 AM to 6. दैट इज 8 आवर. सर कब होगा? तो आगे आप रीड करोगे 6 मार्च को. ये मेरा डेट हो गया. ठीक है ना. क्यों होगा ये वाटर सस्पेंड, क्यों होगा सप्लाई? तो फॉर द क्लीनिंग ऑफ वाटर टैंक. तो ये मेरा रीजन होगा, ये क्लीनिंग ऑफ वाटर टैंक, ये दिस इज माय रीजन फॉर द नोटिस. दैट व्हाई आई एम राइटिंग इट. एंड राइट अ नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स. एडवाइजिंग, आपको क्या करना है यहाँ पे एडवाइस देते हुए नोटिस लिखनी है टू द रेसिडेंट ऑफ. कुछ ना कुछ तो लोग होंगे जहां पे ये वाटर सप्लाई बंद होगा. ठीक है, तो यहाँ पे वो रेसिडेंट्स जो है, कौन सा है रेसिडेंट यहाँ पे दिया गया है, जनता ग्रुप ऑफ हाउसिंग सोसाइटी के लोगों को बोला जाता है. ये नोटिस उनको दी जाती है. कौन दे रहा है नोटिस? यू आर मिस्टर करण कुमार. यहाँ पे करण कुमार के हैसियत से ये नोटिस लिखी जा रही है. ये करण कुमार कौन है भाई? तो क्या भाई सेक्रेटरी, इश्यूइंग अथॉरिटी है, इसका औहदा है, मतलब द डेजिग्नेशन ऑफ अ पर्सन इज सेक्रेटरी ऑफ दैट हाउसिंग सोसाइटी. कहाँ पे आई है, प्लेस कहाँ है? तो पालम विहार. यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो ये रहा पालम विहार, राइट, कर्नल में आया हुआ है. तो दिस इज माय सब्जेक्ट एंड ओवरऑल इंफॉर्मेशन दैट आई वांट टू मेंशन इन द नोटिस मैंने आपको हाईलाइट करके दिखा दिए. अब लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू राइट इट.
तो मैंने आपको बोला था यहाँ पर टॉपिक जब एक्सप्लेन कर रहा था उसके, तब मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ये वाली पेंसिल बॉक्स, पेंसिल से आप एक बॉक्स बना दीजिए, ड्रॉ अ बॉक्स बिफोर राइटिंग, बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे कौन इश्यू कर रहा है, द नेम ऑफ द इश्यूइंग एजेंसी और अथॉरिटी, कौन इश्यू कर रहा है, जनता ग्रुप ऑफ हाउसिंग सोसाइटी। तो मैंने ये वाला पूरा लिख दिया है। फिर मैंने बोला था आपको दैट यू हैव टू हाईलाइट द नोटिस, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, वो भी कैपिटल लेटर में होना चाहिए, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। दूसरी चीज हमें बोली गई थी कि भाई डेट ऑफ इश्यू, कौन सी डेट पे इश्यू हुआ है, तो यहाँ पे मैंने क्या रैंडम डेट लगा ली है। यहाँ पे तो आपको कौन सी डेट पे इश्यू करना है वो नहीं दिया है, कौन सी डेट के लिए इश्यू करना है वो दिया है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये वाली नोटिस आपको थोड़ा यहाँ पे जो डेट दी जाएगी जिसपे वो इफेक्ट होने वाली है, उस डेट से थोड़े दिन पहले, मतलब 3-4 दिन या 2 दिन पहले आप लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे रैंडम डेट लगा रखी है, पुट वन रैंडम डेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सब्जेक्ट टाइटल। अब सब्जेक्ट टाइटल तो मैंने यहाँ पे, तो सर आपने अटेंशन लिखा है और आपने बोला था कि वाटर सप्लाई विल बी सस्पेंडेड, ये सब्जेक्ट है। तो माय डियर स्टूडेंट, वन थिंग रिमेंबर इन योर माइंड दैट यू कैन राइट दिस एज अ सब्जेक्ट ऑल्सो, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा आर्टिस्टिक वैल्यू डाला है इस वर्ड का कि भाई मैं यहाँ के लोगों को, ये हाउसिंग कॉलोनी के लोगों को अटेंशन दे रहा हूँ कि भाई ध्यान देना, ऐसा होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे उसको अपना सब्जेक्ट बना दिया है। आप ये वाला चाहो तो लिख सकते हो दैट वाटर सप्लाई विल बी सस्पेंडेड, अथवा तो सस्पेंशन ऑफ वाटर सप्लाई, इस तरह से आप सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। आपने बना दिया, फिर क्या करना है, नोटिस के अंदर मैंने बोला था ना आपको व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, ये क्वेश्चन के आंसर देते जाओगे, आपकी नोटिस कंप्लीट हो जाएगी। चलो देखते हैं पहले। दिस नोटिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रेसिडेंट रिगार्डिंग द सस्पेंशन ऑफ सप्लाई। अब ये पहली लाइन आपने पढ़ी ना, तो इसमें देखो who will be affected by that notice, कौन अफेक्ट करेगा नोटिस को, तो the resident of, yes, the resident of the society, इस सोसाइटी के रेसिडेंट। क्या सब्जेक्ट है, व्हाट इज द सब्जेक्ट, व्हाट इज अ मैटर टू राइट, व्हाट इज अ मैटर टू राइट, तो मैटर है हमारी सस्पेंशन ऑफ वाटर सप्लाई। कितने टाइम तक है, तो यहाँ पे 8 आवर्स दिया हुआ है। इज इट बीइंग डन टू क्लीन, सर क्यों, रीजन क्या है, व्हाई, यहाँ पे लिखा है देखो व्हाई, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, रीजन इज टू क्लीन द वाटर टैंक, ये रहा वाटर टैंक को क्लीन करने के लिए। दूसरी डिटेल्स क्या चाहिए आपको, भाई कब से होगा, तो कि भाई यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया है 6 मार्च, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 6 मार्च, ठीक है। कितने टाइम तक होगा भाई, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 6 तारीख को कब होगा, तो ये रहा 10 AM to 6 PM, तो यस आई हैव मेंशन ओवर हियर 10 AM to 6 PM। 10 यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखनी कि एडवाइस वर्ड दिया गया है, कौन सा, एडवाइस। तो आप क्या करोगे, 10 we request you to store the required amount of water before hand, आप पहले ही जब बंद हो उससे पहले ही आप कलेक्ट कर लो, जितना पानी उस दिन 5-6 घंटे के लिए या 8 घंटे के लिए चाहिए उतना पानी स्टोर कर लो। पीछे से आपको कोई जब बंद हो जाए तो तब आप बाल्टी लेकर निकल मत जाना भाई, ठीक है ना। टू अवॉइड दैट हैजर्ड आफ्टर दैट बीन हैपेंड, एक बार हो जाने के बाद जो डिफिकल्टीज आएगी उसको फेस करने से अच्छा है दैट प्रिवेंट इट। थैंक यू, ये थैंक यू जो वर्ड है वो कौन बोल रहा है, कि भाई ये इश्यूइंग अथॉरिटी बोल रही है। फिर यहाँ पे मैंने आपको बोला था ऑथोराइज्ड सिग्नेचर में क्या क्या लिखना है, तो नंबर 1 नेम, डेजिग्नेशन एंड सिग्नेचर। कौन दे रहा है भाई, नोटिस कौन लिख रहा है, तो करण, यहाँ पे यू आर करण, देखो मैंने लिखा है, आपको करण बन जाना है और फिर लिखना है, तो आप भी बन गए यहाँ पे करण, लिख लिया, ठीक है। उसकी साइन हो गई, वो भी ठीक है, लेकिन ये करण पे हो है कौन उस सोसाइटी का, तो भाई डेजिग्नेशन तो मेंशन करना पड़ेगा ना, सेक्रेटरी, देखो यहाँ पे मैंने लिखा सेक्रेटरी, ठीक है। I hope my dear student you have understood it very properly and keep it in your mind, and please do not forget to mention this thing into your notebook. It will helpful for your examination. Thank you.